भावना आप स्टार्ट करोगे? Sorry, sir. Yes, I can start. I have prepared on the issues of language and coffee industry, issues related to coffee industry. Okay, one minute. लैंग्वेज एंड कॉफी इंडस्ट्री इतना ज्यादा टॉपिक हो जाता है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ. 1 मिनट रुक जाओ. Yes, sir. या स्टार्ट. Sir, and another suggestion, after finishing one topic, can we switch to another person so that there'll not be that monotonicity in the discussion? ओके. यस गुड. आप एक कर लो, मैं एक नित्यास कराता हूँ, नैंसिस फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, yes, sir. या बेटर. चलो स्टार्ट. So firstly, the language issue is it came into news because of two reasons. Firstly, is the use of Hindi language in medical education. Recently, our Home Minister inaugurated the books in Bhopal, which were related to medical education, and they were in Hindi. Secondly, is the parliamentary report on promoting Hindi was given. And these two reasons, it in fact gave a new life to this Hindi versus non-Hindi debate that was existing, and in fact, it is existing throughout the independence period also. Firstly, to understand the status of Hindi, we can look at the 2011 linguistic census, wherein the census in fact records 121 mother tongues in India. And the constitution has given a special place to 22 languages in the 8th schedule, of which even Hindi is one of the languages. But what makes Hindi more important is that it is widely spoken. Around more than 43% of the people in India speak Hindi. That is around 53 crore. And 11% of the people in India have reported Hindi as their second language. So this gives more prominence to Hindi because it's the most widely spoken and understood language in India. Secondly, if we talk about the constitutional position of Hindi, there are two articles, specifically Article 344, Clause 1 and Article 351. In Article 344, it speaks about the formation of a commission by a president with chairman and members who will represent the scheduled languages, and they recommend the use of Hindi for their official purposes. So that is what Article 344 Clause 1 talks about. The other one is Article 351, which specifically speaks about promoting the spread of Hindi. Here in 351, it's only mentioned about promoting the spread of Hindi itself, and no other languages specifically mentioned here. Now coming to the challenges for promotion of Hindi. Why? Sorry, sir. Now coming to the challenges for promotion of Hindi is that why Hindi cannot be used in medical education, or why it can't be the prime language for education, is firstly that there is no specific language set which is available in Hindi. Whether if we talk about the scientific terms, the research papers, they are not sufficiently available in Hindi. And secondly, even if you go to law or any other scientific or legal terminologies, it is very difficult for them to be translated into Hindi. And third one is that it is perceived as an inferior language, especially at the global arena. There is a communication gap. If we want to communicate using Hindi with other foreign, with other people, then it is not possible. And even now, English is in fact accepted as a lingua franca of the entire world. Thirdly is that it is a language of identity. It is not a language of knowledge, because the knowledge or the resources which are available in Hindi are limited. Language of identity, I specifically want to tell that there is this cultural assertion through language, which goes on like Hindi versus non-Hindi or Hindi versus Tamil. So this happens if one indulges in aggressive promotion of Hindi. And lastly, to be more the issues that are the challenges to the promotion of Hindi is that poor translation.
so many times we can see that the documents in Hindi are just transliterated and the original meaning or the essence of that entire text is lost. And also the transition of a person who has, or of a child who has studied in Hindi and immediately to English language, it is not good. So it is not very easy, or sometimes a child feels it difficult for opting for immediate transition to English language. And transition to English is kind of considered mandatory because of the job opportunities that the child or the job seeker can get if he knows the English language. So this transition from Hindi to English learning is also not very easy in mid-school. So these are the challenges which affect the promotion of Hindi language. And in short, what is the like way forward, or how it can be tackled, is that Hindi should be used more for knowledge sharing and communication. And one more suggestion is that the education can be made bilingual, like using English along with Hindi. The specific scientific terminologies can be given in English as it is, whereas for the better understanding purposes, Hindi can be used as a filler language. And many studies from UNICEF have in fact proved that learning in their mother tongue gives a much better understanding, and it in fact improves the cognitive levels of the child. So learning in mother tongue is in fact emphasized, but learning English along with Hindi, or for the purposes of understanding, Hindi can be utilized till Hindi improves its knowledge or resource pool, and wherein we can get the sufficient material in Hindi. Till then it can be made bilingual, the education. And coming specific, sir, do I continue? आपको हो गया हिंदी वाला? It's finished. Sir, specifically medical education in Hindi was stressed upon. Okay. So I have just got a few points with which Yeah, are related to medical yes. education in Hindi. Yes. That is because why did it gain ground is that examples of non-English countries like China, Germany, Japan, and Russia, their medical education is in fact in their own mother tongue. And secondly, like I had told before, education in mother tongue is considered very effective, and it's supposed to be the best medium of learning for understanding purposes. But why can we say that English is the best medium for medical education and we should not immediately switch over to Hindi? That is because less resources in Hindi, and it can't support the job seeking population. Also, teaching in mixed language, that is 2 languages, local language plus English, that will be more beneficial and efficient. And thirdly is that there is more demand for English medium education. Recently, the survey in fact quoted the closing down of schools of Tamil, primary language Tamil schools in Tamil Nadu. That was because the parents were in fact, they wanted to send their children to English schools. They did not want to send them to Tamil schools wherein Tamil was taught as a primary language. Also, English acts as a great leveler, meaning it is a link language across the globe. It opens many doors and many opportunities because the research, the journals, and then even the knowledge resources, everything is available in English. Even most of the internet, whatever we are using, it is not available in the local languages or in the vernacular languages. So English acts as a great leveler, and if a person knows English and understands it, it opens many doors of opportunities for him, for employment, for learning, for education, for everything. And lastly is the issue of translation. Like even now, if you look into the translated version, like the medical textbooks, which are there now newly opened in Hindi, there the medical terminologies are in fact just translated into Hindi, along with words in English are given in brackets. So this doesn't serve the core issue of learning medicine in Hindi as such. It's in fact learning it in English only, but using Hindi as a tool for better understanding. And there has been no clarity on the roadmap of using Hindi as a language for medical education or anything. And even training of teachers and conferences, whether they're going to be held in Hindi, there's no clarity on the future course of completely introducing Hindi as a parallel language to English in medical education. One more thing, what can be a suggestion to improve the understanding is that extra evening classes for their understanding, like especially for people who have come from Hindi medium of education to English for MBBS, they can take extra evening classes wherein the lecturers or the professors can explain few things in Hindi, so
the suggested way forward, sir. So this completes the entire topic of Hindi as a language, and how efficiently can Hindi be used in medical education? First, you 3-4 points you all wrote down. You see in the Constitution which provisions are encouraging for Hindi, and is being said that these are the directive principles of state policy. Point number 1. तो आप संविधान से निकालिए कौन कौन से, जो आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 344(3) है, ये इंपॉर्टेंट, 341, 343, 344(3). फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. इसका सेक्शन 4 क्या बोलता है? यह प्रोग्रेस ऑफ ये बात करता है, it is duty to review the progress made in the use of Hindi for official purposes of union and submit a report to the president. The act makes it obligatory for the president to issue directions in accordance with the whole or any part of report thereon. तो पहली पॉइंट क्या हो गई? We should know what is the constitution position with respect to the Hindi. Second, how in the freedom struggle Hindi has been taken. राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी कैसे रखी गई. थर्ड पार्ट, ये कहा जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने बोला कि यूज इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. लॉर्ड मैकाले के पहले राजा राममोहन रॉय ने ही कहा था कि यूज इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. नाउ कम्स द आर्गुमेंट ऑफ द भावना. हर मेन आर्गुमेंट इज रिलाइंग अपॉन द ट्रेनिंग, लिटरेचर एंड आर्टिकल्स. कि इंग्लिश में हिंदी में ट्रेनिंग नहीं है, लिटरेचर्स नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है. वन ऑफ द इशू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि हम हिंदी को एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में. तो फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम ये कहते हैं कि साहब हिंदी में कुछ नहीं है, एक आर्गुमेंट आपके खिलाफ क्या आएगा कि चाइना और जापान अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, रूस पढ़ाते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा सकते? इसमें एक अच्छा हमारे पास क्या है, चाइना, जापान, रूस में एक लैंग्वेज है, यहाँ वी हैव मल्टीपल लैंग्वेज. यू आर ए कर्नाटका स्पीकिंग गर्ल, आपका मदर टंग कर्नाटका है, बोलो कि सर आई हैव द मदर टंग ऑफ कर्नाटका. As the other mother tongue is interested for Hindi, I also for the Karnataka, I have no issue. But how I will get the literature or the articles? So what you can say, I am not denying the fact that Hindi as a medium of instruction should be. In fact, every regional languages has a right to progress. हिंदी is a lingua franca. जो हिंदी है एक lingua franca के लिए इस्तेमाल हुई है. एक हमेशा ये लोग बोलते हैं भाई कभी तो शुरू होगा. The issue has to be started somewhere. But yes, it can be started, but it cannot be removed overnight. जो दूसरी बात आपने बोला कि इवनिंग का, जो एक तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझिए. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उससे डिविएट कर लिया है. तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फेल हो चुका है अगर आप कहें तो. दूसरा, जो ये हिंदी मीडियम स्टेट्स हैं इनके खिलाफ जो नॉन हिंदी मीडियम स्टेट के ग्रीवांसेस क्या है? सदा ग्रीवांस किसके पास है? तमिलनाडु के पास है. तमिलनाडु असेंबली ने प्रस्ताव पास कर दिया. तो इफ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिंदी फॉर ए हिंदी मीडियम स्टेट्स, then other states will also say I will introduce the Tamil, Malayalam, Karnataka. Then we have the literature or the artists, the multiple languages. बोला सर हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए लेकिन और राज्यों की भावनाओं को समझना चाहिए. मुझे और राज्यों की भावनाएं क्या है? बोला वो भी अपनी लैंग्वेज प्रमोट करना चाहते हैं. हर लैंग्वेज को प्रमोट करना हमारा कर्तव्य, लेकिन हमने माना है कि हम हिंदी को धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे. एक सवाल हमेशा आता है, हिंदी रिप्लेस क्यों नहीं हो पाई? टेल मी भावना. why English has not been replaced? कहा 15 साल बाद इंग्लिश हटेगी, हिंदी आई, क्यों नहीं ऐसा हो पाया? Sir, the concerns of the non-Hindi speaking states, yes. Because the act was amended again in 1965, wherein the Nehru ji in fact gave the decision to the non-Hindi speaking states so that they will have the choice of
taking Hindi or continuing with English. So that was the reason why English was continued. You can say by 1960, the political class has realized that English cannot be replaced because there is no consensus of this issue. Without having a consensus, we cannot replace it. There is this need of a political consensus of this aspect. I think it's enough this issue. हाँ, Yes, आपका sir. नित्या क्या है? नित्या आपका क्या टॉपिक है? Sir, I have 3 topics. Biofuel. एक कोई आप करो, कोई एक टॉपिक करो. Okay, so I will do biofuels. क्या बायोफ्यूल और क्या आपका? और UNFCC मीट है और एक और वो न्यू व्हीट वैरायटी. अच्छा, आप बायोफ्यूल कर लो. ठीक है, चलो लो. Okay, sir. So, sir, a biofuel is made up of a hydrocarbon and it is mainly produced from organic matter. And it can be produced within a short period of time. So biofuels can be produced from 3 types of matter, like it can be solid also, it can be liquid, and it can be gaseous as well. Then the examples of solid biofuel can include from like wood, dried plant material, manure. Then liquid biofuel can be from bioethanol, biodiesel, and gaseous is biogas. Now, why biofuels are gaining tangent in the recent time? Because they are environment friendly, so they can be used to deal with the impact of climate change, etc. Then, as we know that fossil fuels, they can be depleted, and we cannot go on using them for infinitely. So these biofuels can help us in replacing fossil fuels like diesel, petrol, etc. Then, sir, we have different categories of biofuels, such as first generation biofuel, second generation biofuel, and third generation biofuels. So the first generation biofuels, they are mainly produced from food sources like sugar, starch, vegetable oil, etc. Some of the common examples of first generation biofuels include bioalcohols, biodiesel, etc. Now, the problem with first generation biofuels is like it is mainly produced from sugar, starch, food, vegetable oil, etc. So we already don't have enough land for producing food for our population. Then additionally, we have to produce food for producing biofuels. So this is then if we are producing foods like maybe sugarcane, etc. So these are water guzzling crops, then again it will have impact on our environment. So there are some issues with first generation biofuels. Then second, we have the second generation biofuels. These are produced from non-food crops or portions of food crops that are not edible or considered as waste. So the examples are stems, husk, wood chips, etc. Now, the second generation biofuels, they are much more beneficial as compared to the first generation biofuels, because mainly we are producing them from waste product, which is already not of much use to us. Then secondly, in comparison to first generation biofuels, the second generation biofuels emit less greenhouse gases. Now, third, we have the third generation biofuels, which is mostly produced from microorganisms like algae. Example includes butanol. This is the most appropriate biofuel which we can say, because it is mainly produced from algae. Then it is also much environment friendly. Then we have the fourth generation biofuels. In these biofuels, the crops that are genetically engineered to take in high amounts of carbon are grown and harvested as biomass and then converted into fuel using second generation techniques. अब इसमें 3 चीजें आप नोट करो. Why biofuel is needed? सर अभी मेरा रिमेनिंग है. अच्छा, ओके चलो मुझे आपने फिनिश कर दिया. चलो बोलो. Then sir, the next thing is that why we are using biofuels. What are the advantages of biofuels? So the first thing, the first advantage that we have is regarding the availability. So biofuels are means available in, if we are going to produce it, then they will be available in a much more better manner as compared to other conventional sources of energy. What I'm trying to say is that biofuels are renewable, so we can easily use them. Then sir, whatever source materials we are using for making biofuels, they are environment friendly. Then second, it will help us to
to achieve our international targets, whatever we have made at Paris Climate Agreement or other international agreements which we have made. Then also it will help us to deal with the impacts of climate change and deal with the cost which we will incur if sea level rises or like devastations of climate change, etc. Then it will also help us in having fuel security, energy security. India currently relies on West Asian nations for its fuel, petrol, diesel, etc. And whenever maybe there is some crisis, and mostly we have seen that in West Asian countries, civil war kind of things takes place. So then there is tension we have some tension regarding our energy security. So if we rely on biofuel and if we start producing biofuel at a much larger scale, then we won't be having this problem. Then there is an economic aspect also, since we import a lot of fossil fuel from West Asian countries. So that has an impact on our current account deficit, and ultimately it also impacts our rupee value. So if we are able to produce fuel in our own country, then this problem can also be solved. Now, what are the disadvantages of biofuels? So first disadvantage is that currently India is not investing much in research and development of these fuels. Then secondly, we don't have much private sector participation. So we need to increase our spending on research and development, as well as incentivize the private sector to do some research and also invest upon producing biofuels. Then second thing is cost also. Since we have not achieved much efficiency in developing technologies, etc., so the initial cost of setting up or producing biofuels will be obviously high. Then another thing is regarding the efficiency of biofuels. So there is a data that fossil fuels produce more energy than some of the biofuels. For example, 1 gallon of ethanol produces less energy as compared to 1 gallon of gasoline. So this is a negative impact which we can overcome through research and development. Then we need to talk about some of the international initiatives which have been started to harness the potential of biofuels. So there have been certain roundtable on sustainable biomaterials, then sustainable biofuel consensus. These are some of the international initiatives that have been taken to promote biofuels around the world. Then what are the initiatives that have been taken at the national level? So at the national level, the government has started initiatives like producing ethanol, and then there have been certain targets also set by the national government to blend ethanol in petrol and diesel. Then we also have a biofuel policy and Pradhan Mantri Jeevan Yojana. These are some of the initiatives which we can mention regarding biofuels. Now, what are some of the what initiatives or what are some of the measures that we can take to further promote biofuels? So we can go for helping in rural and agricultural development, and we can also go for developing certain kinds of resources like through which biofuels can be produced. Like we can incentivize the farmers to give whatever waste products they have of agricultural material, etc., through which we can produce biofuels. And then we also need to have certain infrastructure for this. So that's it. very compact. बहुत आपने अच्छा तैयार किया, वेरी कंपैक्ट था. मैं 2-3 चीज ऐड करता हूं इसमें. यस सर. एक आपका है बायोगैस स्कीम. बायोगैस स्कीम नाम सुना है इसका? ये 2018 में लॉन्च की गई. इसका एम क्या था? इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस के प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज का काम किया गया फ्रॉम वेरियस बायोमास सोर्सेस. अब इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या था? हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप.
जो प्रॉब्लम क्या थे कि जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है इनकी बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी, लो रिम्यूनरेशन मॉडल, लो रिम्यूनरेशन मॉडल। तो दो महत्वपूर्ण चीज क्या था कि हाई कॉस्ट इसकी सेटिंग की थी और लो रिस्क मॉडल था। तीसरा, ओनली 35 प्लांट्स कम अप अंडर द सेटअप, सिर्फ 35 प्लांट्स हम ले आ पाए, सिर्फ 35 प्लांट्स इसके अंदर आ पाई, बाकी आ नहीं पाई। तो जो ये सीबीजी प्रोजेक्ट था, अब आप क्या है उसमें आप एक सीबीजी प्रोजेक्ट, ये शायद आपसे मिस हो गया, ये बिजनेस स्टैंडर्ड से आपसे मिस हो गया होगा। एक सीबीजी प्रोजेक्ट है, जो सीबीजी प्रोजेक्ट है इसको लिया गया अंडर वाइट कैटेगरी, अंडर वाइट कैटेगरी। इसको वाइट कैटेगरी के अंदर लाया गया किसके? सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा इसको वाइट कैटेगरी में लाया गया और इंक्लूजन किया गया सीबीजी प्रोजेक्ट में। अब देखिए 5 पॉइंट आप याद रखिए अपने क्लाइमेट चेंज का, वो हमेशा याद रखिए। इंडिया, अब देखिए आपने बायोगैस को ऐड किया है क्लाइमेट चेंज से। अब देखिए इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, वन 197 कंट्रीज हैं। इंडिया 197 प्रॉमिस किया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 2030। ये आपके टिप्स में याद होना चाहिए कि इंडिया उन 197 कंट्रीज में है जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि लिमिट करेगी, इंक्रीज ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से के अंदर लिमिट करेगी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने। दूसरा, लॉन्ग टर्म रोड मैप। ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म रोड मैप हुआ। लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है? बाई 20 नेट जीरो बाई 2070 तक हम नेट जीरो कहेंगे। जो ग्लासगो हुआ था, ग्लासगो समिट हुआ था, ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि अपना जो नॉन फॉसिल एनर्जी है, नॉन फॉसिल एनर्जी, अपनी जो नॉन फॉसिल एनर्जी है इसको हम बाई 2030 कितना करेंगे? 500 गीगावाट। बाई 2030 इसको हम 5 और अपनी हाफ एनर्जी, अपनी जो हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये हम किससे करेंगे? फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस से अपनी हम हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट करेंगे और रिड्यूस करेंगे, और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे। हम वहां अपना जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, अब देखें जो थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर कौन है? इंडिया है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस को एमिट करता है। अब जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो क्या बोलता है? जो क्लाइमेट एक्शन प्लान ट्रैकर्स हैं वह इंडिया के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, और उनका कहना है कि इंडिया जो है फॉसिल फ्यूल पर बहुत ही डिपेंडेंट है। अब आप एक चीज और एनालाइज करें, इंडिया फॉसिल फ्यूल पे क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज द सोशियो इकोनॉमिक रीजन। इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है वह एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल जनरेटेड एनर्जी सेक्टर। तो इंडिया के पास क्या है कि बहुत बड़ी जनसंख्या फॉसिल फ्यूल के आप पे काम करती है। जो अब इंडिया का एक्शन क्या है?
इंडिया के ऊपर कहा गया है कि इंडिया लगातार कोल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक रिसर्च करिए, इंडिया के कोल फील्ड कहां कहां पे हैं। मैंने इसको लास्ट ईयर तैयार कराया था नित्या के इंटरव्यू में। कोल फील्ड कहां कहां है, उन कोल फील्ड से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, कितना उस कोल फील्ड से कहते हैं मनी जनरेट होता है, और कितने फैमिलीज उस कोल फील्ड पे डिपेंडेंट है। आई विल गिव दिस डेटा लेटर ऑन, लेकिन आप लोग काम करते रहिए। अब इससे आपको क्या होगा, आप इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर पाओगे कि व्हाई इंडिया कैन नॉट स्टॉप द फॉसिल फ्यूल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी राइट नाउ। इट टेक्स टाइम because a lot population is depend on this source. We cannot finish it right now. अब इंडिया के स्टैंड क्या है, जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो $100 बिलियन का है पर ईयर, वह अभी तक इंडिया को, वह अभी तक इन्होंने डेवलपिंग कंट्री को नहीं दिया है। इसलिए बोल रहा है कि यह जो प्रॉमिस है वह रिमेन फुलफिल्ड है। देखिए, अगर ये आपको डेटा याद रहेगा तो सपोज इन द इंटरव्यू द क्लाइमेट चेंज इशू केम इनटू द कंसिडरेशन और केम इनटू द डिस्कशन, आपको टाइम मिल जाएगा अपनी बात कहने का। आपके पास जो 40-45 मिनट का समय है, यू आर पॉजिटिवली एबल टू स्पीक इट। द मोमेंट यू गॉट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, यू स्टार्ट स्पीकिंग दीज डेटास। ये डेटा एकदम याद होना चाहिए कि ये डेटा है, इंडिया ने ये कर लिया है। और इंडिया नहीं कर, समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन आप प्लांट कर दो कि इंडिया फॉसिल फ्यूल से तुरंत नहीं हट सकता है, आप इसे छोड़ दें यहाँ पे। लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, ही विल आस्क द क्वेश्चन, देन यू कम ऑन दिस एस्पेक्ट। अब हम इस डेटा को भी तैयार करेंगे कि इंडिया के पास कितने कोल फील्ड है, उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कितना वहां पे कहते हैं इकोनॉमिक पार्ट है, और इंडिया कैन नॉट स्टॉप इट राइट नाउ, वी नीड टेक टाइम, और देन यू हैमर ऑन दिस इशू। क्लियर? मेरे ख्याल दित्या आपको बड़ा अच्छा था। चलो नैन्सी, Sir, Nancy has written in the group that she has throat infection. अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ चलो फिर आते हैं, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। भावना, कॉफी कर लेते हैं आपका। Yes, sir. Sir, in this, I would like to say that this coffee industry issues, it's given in quite detail. So we can use the similar format for other plantation crops also, like tea. Yes. So the same format, same challenges, and the same crisis what it is going through, it can be compared. Like you can follow a comparison approach. So what do you want? You want to discuss it later on? We prepare the tea also. Are you prepared it? Sir, I have not prepared tea. I have done it for coffee completely. But then after doing it, I thought that it can be used for comparison also, because both are almost beverages. तो इसको on hold कर देते हैं, हम कॉफी टी एक साथ तैयार कर लेते हैं। Sir, but few issues are specific to coffee also. चलो ठीक, चलो come. I'll just brief it out and start. So firstly, coffee industry recently what it has seen is, it has seen increasing losses. Firstly, the reasons are that there are increased cost of input. For that, the author specifies two specific issues. That is, one is labor shortage and other one is climate change. Now, coming to the basics of coffee crop, what I have just listed down few basics about coffee crops. It is actually a tropical crop. And if you see the history, it is not native to India, but it was planted in India by a saint called as Baba Budan. Even now, that particular hill where he planted the first coffee beans, it's called as Baba Budangiri. It's there in Karnataka near Chikmagalur. The conducive temperature for it is around 16 to 28 degrees centigrade. It requires a rainfall of 150 to 250 centimeters, but it should not be stagnant water and it should be on well-drained slopes. And hilly slopes with laterite soil provide the best growing conditions for coffee crop. It is not that it needs hilly slopes, it can be grown on flat land also. And that is, I'll come to this later, because in regions like Colombia and Brazil, coffee is cultivated on flat land, and that they have seen more increased production on flat land rather than on hilly slopes.
What is harmful for coffee is low temperature of frost. Then very harsh sunshine is also harmful. So it's a shade loving plant. You can observe if you go to any coffee plantations, there'll be huge tall trees in between coffee. They grow a teak or any other tree to provide the shade. Coming to India and status of coffee plantations in India, 4% of world's total coffee production occurs in India, and it ranks 6th in the world. And out of the production in India, around half of the total coffee comes from Karnataka. The remaining half is from Kerala and Tamil Nadu. What makes coffee more important is that it's a high value crop, meaning it has the potential of value addition. You can the processed beans can be sold, even roasted and ground can also be sold. Many different varieties of coffee beans can be sold. So this makes it more remunerative because of the value addition potential. But now, what are the challenges that this coffee industry is facing? Firstly, it is climate change and changes in climatic patterns, that is, weather extremes or extreme weather events. If we see in the previous past decade or in 10 years, there have been extreme dry spells between the year 2015 and 2017. After this, it was followed by heavy unseasonal rains and landslides. If we are following the news, we can know that Coorg, which is also one of the places for coffee plantation, Chikmagalur, Sakleshpura, all these places, they faced heavy rains and landslides in the year 2018 and 2022. Because of this, there are the coffee beans will fall to the ground. It will start rotting. So these are the issues which are directly related to climate change. Then impact of heavy rain, it also causes the disease which will affect the coffee plants. It will cause damage to estate infrastructure. Many issues with plants like fruit rotting, stalk rotting, root rotting, these happens because of stagnant water or because of increased moisture. And it will lead to the emergence of new diseases because of new pests which are breeding. Now, why is this particular coffee industry in more crisis? This is related to coffee itself. That is, there is no adequate fund support by the government. There has been no research in coffee plantations or coffee plant as such. Otherwise, if we had promoted research, like how recently we can link it with the GM mustard, which is coming. So development of weather resistant strains of coffee, or study coffee plant disease resistant crops. So this research has not been taken place. Secondly is the volatility in market prices. What it does is it is marginalizing the producers, whereas it has turned the entire coffee market into a buyer-driven commercial market. So there is huge volatility and it depends only on the demand, but it does not take into concern the issues of the producers. Thirdly, the impact of export on the cost. That is, almost 75% of Indian coffee production is exported. And this also has an impact on the cost because Indian coffee is not branded. So that is another issue wherein we can look into and improve our branding. Again, cost of financing, because the coffee producers or growers, they will be asked to give a collateral to obtain the finances for their plantations. This increases the input cost. And like I had told before, there is no brand identity for Indian coffee as such in the world, whereas Colombian coffee has got its own brand identity, Brazilian coffee has, whereas there's no branding for Indian coffee on a global scale. So as such, it is not marketed more efficiently, and it does not have that consumer base, or it does not attract the consumers. Now, coming to the core issue, there are two main reasons why there are increased cost of production is observed. Firstly is the increasing labor charges. Here, there is a comparison between Brazil and India. In Brazil, labor accounts for only 25% of the cost of entire production, whereas in India, it accounts for 65% of the entire production. It goes into labor charges. So while coffee production is also less, the cost of production is increasing. Secondly, high cost of irrigation because of use of diesel pump sets to irrigate the coffee fields. There are increased power cuts in the region, and to supply the electricity, the farmers are using diesel generators. So that increases their cost of irrigation by almost 20%. Thirdly is the hard terrain and topography. In India, like I had told before, it is grown on hill slopes, whereas in other countries where they are growing on flat lands, in fact, it has seen an increase in production. And last is the unskilled
migrant labor and wage costs. Here, what is happening is there are families who carry out coffee plantation work as their hereditary work, but now most of their children have been educated and they are moving out into the cities, so they need to get skilled labor. But migrant labor who are coming to work on these fields, they are unskilled. And coffee plantation or that berry picking, then again drying, there are so many other procedures which are involved. They require a certain skill set. So this is not being done, because the producers have to train the migrant labor and then again use them for the production. So this is increasing their production cost. Whereas what can be done, or why is rejuvenating the coffee industry important, is that it creates an alternative sources of revenue. First, what we can do is increase the domestic consumption. Compared to the tea consumers, coffee consumers is a minority almost. So increase the domestic consumption by increasing branding and promoting, and have a proper export policy. Secondly is additional sources of revenue while having coffee plantations, like going for intercropping, using spices, parallelly growing plants of spices, pepper, cardamom. These can be grown in combination with coffee plants. Then going for dairy farming, or nowadays farmers have started cultivating fruit trees to provide a shade, like avocados or oranges. So these will act as an additional source of revenue. And also they can permit to plant alternate crops in these coffee plantations. And recently another issue was with respect to the Coffee Act and the Coffee Board. So the government has come up with a new bill also, the new coffee promotion and development bill. So this in fact sees that the old act, whatever the provisions were there, they were too restrictive and they were redundant. So now they plan to bring changes to the Coffee Board also, and through the new act. So hope that this act will in fact reduce the issues that the producers are facing now. So this is in detail about the coffee industry and that new Coffee Act, sir. Let me summarize in the 5 points what the Bhavna said. First is the problem facing the coffee industry. How the question may be generated. The climate. They are heading the climate. Climate 2 पार्ट है, जिसमें रेंज जो है प्रॉपर नहीं हो रही है. जो इम्पैक्ट ऑफ रेंज है. दूसरा पॉइंट नंबर 2 क्या है? ड्रॉट एंड फ्लड. तो क्लाइमेट क्या लिखे? रेन्स, ड्रॉट एंड फ्लड. सेकेंड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम. जो प्राइवेट बैंक्स हैं वह कोलेटरल फाइनेंसिंग जो मांग रहे हैं, जो मोस्ट प्राइवेट बैंक है, इंसिस्ट करते हैं ग्रोअर से कि प्रोवाइड करो हमको कोलेटरल फॉर फाइनेंसिंग. अब चूंकि स्मॉल और मीडियम साइज के जो कॉफी प्लांटर्स हैं उनके लिए देना आसान नहीं होता है, और इंटरेस्ट रेट इसका बहुत ज्यादा है, एज हाई एज 12%. अब इसको कंपेयर करो, जो भावना ने एक इशू रेस किया कि व्हाई वी आर बिहाइंड द इंटरनेशनल कॉफी प्लांटर्स. जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट है वह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इफ यू कंपेयर द 12%. यू मिस द भावना दिस पॉइंट. आप इंटरनेशनल आप रेट से देखिए तो यह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वह उनका मोस्टली सिंगल डिजिट में है. तो क्या हो गया? अब यहां से आपका क्या निकाल रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट एबल टू compete. जो आपने बाद में एक इशू रेस किया है, उस इशू का आंसर क्या है कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू compete विद द इंटरनेशनल प्लांटर्स. वन ऑफ द रीजन ऑफ फाइनेंसिंग, जो हमारे मीडियम और लो प्लांटर्स हैं इनको इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, विद द कोलेटरल्स मिलता है, 12% है. इस मामले में इंटरनेशनल प्लांटर्स हमसे आगे होते हैं. अब कॉस्ट देखिए, कॉस्ट लगातार इनकी इंक्रीज हो रही है. जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लेबर, जो अगर आप देखें तो कॉफी प्लांटेशन जो है हाईली लेबर इंसेंटिव है. 60 to 70% लेबर तक काम आता है, तो प्लांटेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. अब अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, हमारे पास प्लांटर्स के पास देने को कोलेटरल सिक्योरिटीज नहीं होती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत होता है, एनपीए हो रहा है.
एनपीए क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो जो हमारे मिनी कॉफी ग्रोअर्स हैं वो टर्न हो रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, और उससे क्या हो रहा है, रिकवरी प्रोसीडिंग से परेशान हो रहे हैं वो। जो SARFAEST एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड रिकॉन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, उससे वह रिकवरी से परेशान हो रहे हैं। अब इंडिया में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी वो लो है। तो आपने क्या क्या हैंडल किया, एक क्लाइमेट हैंडल किया, फाइनेंस हैंडल किया, लेबर इंसेंटिव हैंडल्स किया, एनपीए किया। आप ऐसे लिखो, सिर्फ आप यही लिखो, यही हेडलाइन लिखो, सब याद आ जाएगा आपको। अगला क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है कॉफी का वह लो है। अगर हम कंपेयर करें अदर कॉफी प्रोड्यूसिंग नेशन से, खासकर ब्राजील और वियतनाम से, ब्राजील का जो लेबर चार्ज है अकाउंट करता है 25%, हमारा करता है 60%। इंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट का ब्राजील का जो अकाउंट है वो करता है 25%, इंडिया में है 65%। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कैसे कम डाउन करें? कॉफी इंडस्ट्री में मैकेनाइजेशन की आवश्यकता है। क्लियर? यस सर। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टेयर देखें, यह चला गया है 80 to 85,000 रुपीस, जबकि 5 साल पहले 50,000 कुछ हुआ करता था। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर गया कैसे है? वाई? इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। जो फर्टिलाइजर और एग्रीकेमिकल्स हैं, अगर आप उसको एनालाइज करें 20% बढ़ चुके हैं। तो अगर आपको मेंस पे लिखना हो, इंटरव्यू बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट से ही काम हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है इसका ये बढ़ चुका है। अब जो इन्होंने एक बात भावना ने रेस की कि एक माइग्रेशन इशू है, तो हमेशा माइग्रेशन इशू को आप कल्चरल इशू से जोड़ के देखो। प्लांटर्स जो है हैवली डिपेंडेंट करते हैं माइग्रेंट लेबरर्स पे, जो अनस्किल्ड होते हैं, और हैवी माइग्रेशन हमेशा कल्चर को इंपैक्ट करता है। अब इस समस्याओं के बाद हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है? पहली बात क्या है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। अगर अपने फॉरेन एक्सचेंज को आप एनालाइज करिए, उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट है। एक क्या है, इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है, लोन। उसका कारण क्या है कि हमारा जो करंट अकाउंट है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वह लेस है, इंपोर्ट मोर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में हमारा ट्रेड हेल्प नहीं कर रहा है। We are not able to have in our foreign exchange the trade commodity. The reason being हमारा ये निगेटिव है। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होता है वो है, प्लस लोन है। बड़ा अच्छा, ये आप याद रखिए, इसको जरूर आप ध्यान रखिए। तो अगर हम कॉफी इंडस्ट्री नहीं, हमको सारे इंडस्ट्री में जहां जहां से फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करने की सुविधा है उसको हमको इनकरेज करना होगा। तो हमारा जो कॉफी इंडस्ट्री है, ये कॉफी इंडस्ट्री हमको इसलिए करता है चूंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो कॉफी का अगर देखें तो हमको एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर मिल रहा है, एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग प्रमोशन कॉफी इन द ग्लोबल मार्केट। हम ग्लोबल मार्केट में कॉफी को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। शी हैज टच्ड द इशू कि हम इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं बना पा रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि हम उन जगहों में जहां कॉफी ग्रो करते हैं वहां पे हम और एग्जॉटिक फूड बेरिंग कैडमियम मसालों को हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। तीसरा क्या है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको तुरंत हिट करेगा। कहीं भी आप चाहे लिखोगे आप या बोलोगे कि हमारा जो कॉफी इंडस्ट्री है उसमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस, ग्लोबल मार्केट मेरी पहचान नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? हमने इस पे काम नहीं किया है। हम इसको ब्रांड करें, हम इसको काम करें। इंडियन कॉफी के पास कोई इंडिविजुअल ब्रांड नहीं है, एक भारत कॉफी के नाम का ब्रांड चलाया जा सकता है। तो हम इसको ब्रांडिंग करने की कोशिश करते हैं।
यूनियन गवर्नमेंट का कॉफी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट आइटम है। इसमें 4000 से 5000 करोड़ एनुअल हुआ करता था 20 साल पहले। लेकिन आईटी सेक्टर पे हमने प्रेफरेंस देना शुरू किया, उसके कारण यह अपने प्रोमिनेंस को लूज कर गया है। और एक बात और ऐड करिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कॉफी। 4 लाख कॉफी ग्रोवर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ लार्ज प्लांटर्स हैं, इस पर एक बहुत से ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, इसलिए यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मैं टॉपिक कर देता हूं, उसका कहते हैं जो मैंने अलॉट किया था नित्या को, और सॉरी नैन्सी को, उसको मैं ही कर देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, पार्ट है। वो पार्ट है, यह इस साल सबको आएगा, आरबीआई मॉनिटर द रूपी और फॉरेक्स। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यह जो आरबीआई काम है, अब सवाल क्या आएगा कि आरबीआई फेल क्यों हो रही है, इस पे आते हैं। हम लोग पहले कर चुके हैं कि आरबीआई क्या क्या करता है, अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं कि आरबीआई फेल क्यों हो रही है, वो उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है। अब हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है, क्या है रिटेल इन्फ्लेशन, कितना हो गया है 7.4%। हमारा मैंडेट क्या था 4 से 6%, यही था ना, तो कुछ और था। आरबीआई का मैंडेट था 4 to 6%। अब रिटेल इन्फ्लेशन हो गया 7.4%। अब ये हमारा ये इन्फ्लेशन है, ये किस पर कैलकुलेट होता है, ये सीपीआई पर कैलकुलेट होता है। तो व्हाट इज सीपीआई? अगर आप इंटरव्यू में कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपको उसको डिटेल पता होना चाहिए। आपने सीपीआई बोल दिया, आपको सीपीआई नहीं आप पता है, आप इंटरव्यू बोर्ड से बाहर हो सकते हो, मतलब रेस से बाहर हो सकते हो। क्यों सीपीआई पे आ जाएंगे, या तो आप माफी मांगो हमको नहीं आता है, या वो ग्रिल कर लेंगे, हाफ हार्टेड नॉलेज है तो आप ट्रैप हो जाओगे। जैसे अपनी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हम जिस भी शब्द का इस्तेमाल करें उस शब्द को बहुत ही गंभीरता से हम जानने की कोशिश करें। तो सीपीआई होता क्या है? सीपीआई में हम देखने की कोशिश करें, एक इंडेक्स है, इट इज इंडेक्स चेंज्ड मंथली। इसलिए आप देखते हैं कि हर महीने आपको सीपीआई की फिगर प्राप्त होती है, एक इंडेक्स है जो मंथली चेंज होता है। अब इस इंडेक्स में है, अब जो ये सीपीआई है इसमें क्या क्या चीज शामिल है, इस सीपीआई में क्या क्या चीज शामिल है, फूड एंड बेवरेज, रिक्रिएशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तकरीबन 299 आइटम है, सारे आइटम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 299 आइटम्स हैं जो सीपीआई में शामिल हैं, वह इन ग्रुप में है, फूड एंड बेवरेज, रिक्रिएशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें 2022 में जो आपका सीपीआई का बास्केट है, देखिए सीपीआई के बास्केट में 2022 में 2022 में चेंज किया गया है। जो सीपीआई का 299 आइटम का बास्केट है, इस बात जो कि 7 ग्रुप्स में शामिल है, इसमें 2022 में चेंज किया गया है। द बास्केट हैज बीन चेंज इन 2022। इसमें 19 आइटम्स एडेड एंड 15 रिमूव। 19 आइटम को ऐड किया गया और 15 को रिमूव किया गया। अब क्या क्या आइटम ऐड किए गए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
meat free sausage. Canned pulses. Sports bra. अब देखिए कितना डाइवर्स ये बास्केट है. पेट कॉलर्स, एंटी बैक्टीरियल सरफेस वाइपर, सरफेस वाइपर. तो दूसरी बात क्या हो गई कि हमारा जो सीपीआई है इसमें 299 आइटम हैं, जिसमें 19 आइटम ऐड किए गए, 15 रिमूव किए. जो ऐड किए गए उसमें इंपॉर्टेंट आइटम ये होते हैं. अब जब सीपीआई इंक्रीज करता है, देखिए अब सीपीआई, या तो सीपीआई इंक्रीज किया या सीपीआई डिक्रीज किया. अब सीपीआई के इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्या मीनिंग हुआ? अगर सीपीआई इंक्रीज किया तो क्या हुआ? एवरेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर सीपीआई इंक्रीज करा, जो आप अगर देखें तो इस समय आपका जो सीपीआई 7.6% है, जो इंक्रीज करे, समझ क्या हुआ? एवरेज इंक्रीज हो गया है इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जो प्राइस थे उसमें हो गया है. इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए हर चीज का एप्लीकेशन समझिए. इसका फर्क है. इसका मतलब क्या हुआ? हमको एडजस्टमेंट करने. अब क्या है? एडजस्टमेंट इन कॉस्ट एंड लिविंग. जो हम पैसा खर्च, इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारी लिविंग है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो फर्क आ गया है. तो अपने लिविंग में हमको एडजस्ट करना पड़े. इसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन. तो जब हमारी सीपीआई इंक्रीज करती है तो हमारे एवरेज जो प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज वो हमारे इंक्रीज कर जाते हैं. इसका असर क्या होता है? हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है. और अगर ये डिक्रीज किया तो क्या मतलब हुआ? यही उल्टा हो गया. इसका उल्टा मतलब क्या हो गया कि जो एवरेज प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज की, वह डिक्रीज कर गई. तो अगर देखें हायर सीपीआई एंड लोअर सीपीआई, हायर सीपीआई का मतलब क्या हो गया? हायर इन्फ्लेशन. लोअर सीपीआई का मतलब क्या हो गया? लोअर इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन ऑल्सो. यह आपके सीपीआई का एक छोटा. अब आते हैं और आगे चलते हैं इसको. अगर आप देखें, जब भी आप सीपीआई की बात करते हैं आपको 2-3 चीज दिखती है. जो कंज्यूमर पर, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई किससे बनता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है. इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल चेंज इन कंज्यूमर आइटम्स. कंज्यूमर आइटम्स में यह ओवरऑल चेंज की बात करता है. और यह जो सीपीआई है यही मोस्ट वाइडली यूज होता है टू डिटरमाइन इन्फ्लेशन. जहां भी क्लियर हो बताना मेरे को. यह मोस्ट वाइज यूज होता है. अब जैसे सीपीआई को देखें, अब इन्फ्लेशन हार्म करता, जो इन्फ्लेशन हार्म करता है. सेवर्स, लेंडर्स एंड कंज्यूमर्स. इन्फ्लेशन हार्म करता है सेवर्स को, लेंडर्स को और
ये कैसे हार्म करता है? सेवर्स को हार्म कैसे करता है? जो कैश डिपॉजिट होता है, कैश डिपॉजिट, इसकी वैल्यू इरोड हो जाती है। अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया है और सीपीआई बढ़ गया, जस्ट गिव ए थॉट फॉर मोमेंट, अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया है और सीपीआई बढ़ गया, तो क्या होगा? उस 10 लाख की वैल्यू इरोड हो गई। वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब लेंडर को कैसे करता है? अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है एक रेट पर, अगर आपने एक रेट पर फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उससे क्या होता है? आप लेस, आपका लोन क्या हो गया? लेस वैल्यूएबल हो गया। जब तक ये मैच्योर नहीं हो गया, यह आपका फिक्स डिपॉजिट जो है लेस वैल्यूएबल हो गया। जब तक, अब कंज्यूमर को कैसे करता है? गुड्स becomes more expensive। जो सामान है वह और महंगे हो जाते हैं, बहुत बहुत महंगे हो जाते हैं। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीआई। अब सीपीआई को हम कैसे मेजर करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेगा। एनुअल सीपीआई कैसे कैलकुलेट करोगे? इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बास्केट इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ बास्केट प्रीवियस ईयर क्रॉस 100। इसीलिए हमेशा जो सीपीआई होता है वह हमेशा एक रिलेटिव फिगर होता है, और इससे हम निकालते हैं। अब इससे हम निकाला, अब इससे निकालेंगे इन्फ्लेशन रेट। हम इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई यू विल कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। अब क्या हो गया? इससे आ गया न्यू सीपीआई माइनस प्रायर सीपीआई, जो पुराना सीपीआई था, अपॉन प्रायर सीपीआई क्रॉस 100। क्लियर हुआ? बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir, it's clear. Yes, किसी sir. प्रॉब्लम है? बताइए। अब सीपीआई की जो मेथोडोलॉजी है, इसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? यह एक रियल पिक्चर नहीं देता है। इसमें अर्बन वर्सेस रूरल का बायस है। ये दोनों के बारे में एक क्लियर पिक्चर बिल्कुल नहीं देता है। जो लोअर इनकम के लोग हैं, जो लोअर इनकम के इंडिविजुअल हैं, जो लोअर इनकम का ग्रुप है, जो लोअर इनकम होती है, वह ज्यादा, उनका दे कॉन्स्टिट्यूट मोर इन फूड एंड शेल्टर। ये फूड और शेल्टर में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ज्यादा इनका खर्च होता है, अगर इसको हम कंपेयर करें हायर इनकम ग्रुप से। इस कारण से जो सीपीआई है वह एडुकेट जो रिफ्लेक्शन नहीं देता है, वो क्लियर पिक्चर नहीं देता है। ये आपका हो गया सीपीआई। नाउ सीपीआई के बाद हम उस बात पे आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पार्ट। अब जो आर्टिकल क्या है, अब आरबीआई जो है कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? अब रिटेल, अब देखिए दो और कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप पढ़ें आर्टिकल्स को तो आप रिटेल इन्फ्लेशन एंड को इन्फ्लेशन, आप चाहे जितने आर्टिकल पढ़ें आरबीआई पे, इन्फ्लेशन पे, फॉरेक्स पे, सब में दो शब्द आते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। So let's first understand these two aspects, then come on the topic which I want to explain you.
अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? एक के पास वोलाटाइल आइटम ऐड नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? फूड एंड एनर्जी। ये क्या होता है? यह बहुत ज्यादा इसके दाम में चेंज होता है। तो जो वोलाटाइल आइटम है वह एक में ऐड नहीं होता है। तो हेडलाइन कोर इन्फ्लेशन में यह ऐड नहीं होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में यह ऐड होता है। दोनों में फर्क है। अगर कोर को देखें, अब इसको चार्ट ही बना देते हैं, कोर हेडलाइन, चार्ट से आसान हो जाएगा। अगर कोर इन्फ्लेशन देखें, यह कोर इन्फ्लेशन, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज माइनस फूड प्राइस एंड फ्यूल प्राइस। तो जो कोर इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन उसमें माइनस करते हैं फूड आइटम, फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइस। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, ऑल इकोनॉमीज कमोडिटी, इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। तो जो फूड और फ्यूल प्राइस में नहीं है, इसमें ये इट इज मोर स्टेबल, यह ज्यादा स्टेबल है। वाई? चूंकि इसमें जो वोलेटाइल आइटम है वह शामिल नहीं होते हैं। क्यों? चूंकि अवॉइड करता, चूंकि ये फूड और फ्यूल नहीं है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। इट इज मोर वोलेटाइल। क्यों? चूंकि इसमें दोनों वोलेटाइल आइटम, फूड प्राइस, फूड एंड पेट्रोलियम दोनों शामिल हैं। इसको यूज करते हैं, जो कोर इन्फ्लेशन है इसको यूज करते हैं डेवलपिंग नेशन, जो विकासशील देश हैं, इसको यूज करते हैं डेवलप्ड नेशन। कोर इन्फ्लेशन को, अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, अपने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो डेवलपिंग नेशन है वो कोर इन्फ्लेशन यूज करते हैं, और जो डेवलप्ड नेशन है वह यूज करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब चूंकि डेवलप्ड इकोनॉमी का हाउस होल्ड कंजम्पशन फ्यूल, चूंकि अगर देखें जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी में जो फूड और फ्यूल है वह 15% होता है पूरे बास्केट का, और जो डेवलपिंग है उसमें होता है 40%। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में फ्यूल और फूड पूरे बास्केट, जो एवरेज बास्केट है उसमें 15% है, उसमें 40% है। जो कोर इन्फ्लेशन है क्या डिनोट करता है? ऑन गोइंग ट्रेंड इन्फ्लेशन, ऑन गोइंग ट्रेंड इन इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का ऑन गोइंग ट्रेंड करता है ऑफ ए कंट्री, उस देश का, यूज्ड बाय द स्टेट टू डिजाइन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज इन फ्यूचर। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसका मतलब है टोटल इन्फ्लेशन विद इन कंट्री। तो जो कोर इन्फ्लेशन डिनोट करता है जो ऑन गोइंग ट्रेंड है, क्योंकि जैसे ही आपने वोलेटाइल चीजों को निकाल दिया
तो उससे क्या हो गया, एक स्टडी पेस आपको मिल रहा है। क्योंकि वोलेटाइल जो आपके आइटम्स हैं उसका प्राइस कब चेंज होगा आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आपको एक स्टडी मेजर मिलता है कि जो ऑन गोइंग ट्रेंड क्या है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको ऑन गोइंग ट्रेंड नहीं मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू। जैसे ही आपने फूड को और ऑयल को, आप एनर्जी को जोड़ देते हैं, क्योंकि लगातार बदलता रहता है, तो जो देश की जो आर्थिक नीति बनती है, उस देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीति बनती है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। इनका कंट्रीब्यूशन आदमी की लिविंग से ज्यादा होता है। समझने की कोशिश करो उसको। इसलिए जो कोर इन्फ्लेशन है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी की तरफ आपको लेके जाता है कि स्टेट कोई भी स्टेट अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को अगर डिसाइड करना चाहेगा तो इन प्लेस ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन ही विल चूज द कोर इन्फ्लेशन। लिसन अगेन केयरफुली दिस। इफ एनी कंट्री वांट्स टू design a long-term policy for the development, then in place of the headline inflation, he will prefer the core inflation because he will remove the volatile item. Volatile item will not give a clear picture. हमारा जो मान लीजिए इसी इंडिया का सिनेरियो, जो हमारा ऑयल प्राइस है उसका हमारी नीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा फूड हमारी नीति से कोई ताल्लुकात नहीं, क्यों नहीं है या कम ताल्लुकात है। ऑयल सारा का सारा हमारे फॉरेन जो सप्लायर हैं उनकी पॉलिसी से डिटरमाइन होता है। हमारा फूड बहुत कुछ डिटरमाइन होता है हमारे क्लाइमेट से, हमारे नेचर से, हमारे सीजन से। तो अगर हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना चाहें तो आई नीड टू फोकस ऑन द कोर इन्फ्लेशन रादर ऑन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्लियर हुआ भावना? क्लियर? Yes, sir, it's clear. ओके। अब इसको समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं आरबीआई के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सी द प्रॉब्लम विद आरबीआई कि आरबीआई के साथ समस्या क्या है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा हो गया है 7.4, ये बढ़ गया है। सितंबर में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन हो गया है 7.4%। अब जो आपने पहले पढ़ लिया कि हमने रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया है सीपीआई की बेस पे, इट इज द सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन हमारा। अब सीपीआई से काम करता है। अब जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है, अब ये सीपीआई बेस्ड जो 7.4% इन्फ्लेशन है, यह डिस्कंफर्ट जोन में चला गया है, या आरबीआई के डिस्कंफर्ट जोन में चला गया है। क्यों? क्योंकि जो बैंड लिमिट दी गई थी वह बैंड लिमिट क्रॉस हो गई है। अब अगर कोई इन्फ्लेशन डिस्कंफर्ट जोन में चला गया है, देन व्हाट आरबीआई विल डू? इफ एनी इन्फ्लेशन हैज गॉन इनटू डिस्कंफर्ट जोन, तब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई के पास 3 मैंडेट। पहला, Increase the repo rate. नो 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 नो, जैसे ही जाएगा वह गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। जैसे ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा वह गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। क्या? रीजन फॉर फेल्योर टू अचीव, रीजन फॉर फेल्योर टू अचीव, कि जो हमने एक मैंडेट दिया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वह क्यों हो गया, तो वह फेल क्यों हो गया? रिमीडियल एक्शन प्रपोज्ड। कि हम रिमीडियल एक्शन क्या क्या ले जा रहे हैं। एन एस्टिमेट ऑफ टाइम पीरियड, कि हम कितने टाइम पीरियड में, एक एस्टिमेट देगा टाइम पीरियड को कि कितने टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन टारगेट अचीव होगा। टाइम पीरियड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, इसको आप लिखो तीनों चीज, लिखो उसको। ये कहां से आ रहा है? ये आरबीआई एक्ट 1934 से आ रहा है।
आरबीआई एक्ट 1934 कहता है, जो भावना आप कह रही हो यह इसमें आएगा, पॉइंट नंबर 2 में। तो आरबीआई एक्ट 1934 होता है, जैसे ही डिस्कंफर्ट जोन में जाता है वैसे 3। अब आते हैं दूसरे काम पे, दूसरे पे। अब आरबीआई करेगा क्या? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करेगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। यह 6 लोग की मीटिंग करेगा और यह लोग इस बात को डिटरमाइन करेंगे। अब ये क्या होती है? हर 2 साल में 6 टाइम्स होती है, एवरी 2 मंथ्स में 1 टाइम। फरवरी में पहली मीटिंग होती है, तो हर 2 महीने पे एक बार मीटिंग होती है और साल में ये 6 बार मीटिंग करते हैं। अब इसके बाद इस मीटिंग में यह रेपो रेट पर डिसीजन लेते हैं। क्योंकि रेपो रेट जो है वो पूरी आरबीआई, वो पूरे अपने सिस्टम को मैनेज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि रेपो रेट क्या है? यह एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बैंक को देता है। यह एक इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई, अब यह इंटरेस्ट रेट जितना ही कम ज्यादा होगा मार्केट में, वैसे ही इंटरेस्ट रेट फ्लोट करेगा। तो जो रेपो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, यह इस बात को डिटरमाइन करता है। और जो रेपो रेट का जो परसेंटेज है, यह मार्केट के इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेगा। अगर यह ज्यादा हो गया तो मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर कम हो गया तो मार्केट में कम हो जाएगा। जब अब एमपीसी कंटेन करना चाहता है इन्फ्लेशन, व्हेन एमपीसी wants to contain inflation, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है रेपो रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। जब एमपीसी, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, तो वह इसको रेपो रेट को इंक्रीज करता है। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होता है? बोरोइंग महंगी होती है, बोरोइंग कॉस्टली होती है। जब बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और जब उसके बाद जब इन्फ्लेशन रेट बिनाइन लगता है कि इन्फ्लेशन रेट हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जब इन्फ्लेशन रेट हमको बिनाइन लगता है, तो आरबीआई क्या करता है? इस रेपो रेट को रिड्यूस करता है। जहां भी दिक्कत हो तुरंत रोकना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। जब रेपो रेट इंक्रीज करता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है। और जब मॉनेटरी पॉलिसी को लगता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन बिनाइन है, इन्फ्लेशन मुझको हार्म नहीं कर रहा है, तो क्या करता है? रेपो रेट को रिड्यूस कर देता है। उससे क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट जाती है। अब जो सीपीआई हेड, जो अगर अब आप देखिए अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था, अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था? अक्टूबर 2020 में जो सीपीआई हेडलाइन मूवमेंट था वह मॉडरेट था। अगर आप अक्टूबर 2020 की फिगर देखें तो वह उसका जो मोमेंटम था मॉडरेट था। इससे उसमें अगर आप ध्यान दें तो फूड प्राइस ईज कर रही थी और हमारे पास फेवरेबल था। और इंडिया ने विटनेस किया है हाई हेडलाइन इन्फ्लेशन सिंस 2019 से हम हाई इन्फ्लेशन रेट को देख रहे हैं। उससे क्या हो रही है? वुलनेरेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर आप इन सारे घटनाक्रम को देखें तो आपको क्या चीज दिख रही है? कि हमारा इन्फ्लेशन, अब देखिए अब सवाल आते हैं,
अब इन कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इंटरव्यू में कोई भी सवाल पूछा जाए, एनी क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर, चाहे जो सवाल पूछा जाए, हेडलाइन पे, कोर पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, मार्केट लिक्विडिटी, एनी क्वेश्चन यू आर एबल टू आंसर, बिकॉज द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इन योर माइंड। और इसी में से एक दो आंसर ऐसे निकले जो आपके मार्क्स को जब कराते हैं। अब आते हैं दूसरे पे कि आरबीआई, अभी से थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको, इसी चैप्टर कर लेते हैं। आरबीआई स्टेप क्यों करता है? आरबीआई स्टेप इन करता है, किसमें स्टेप इन करता है? मॉनिटर, बैंक को मॉनिटर करने। अब इसको आप जोड़िए, जो बैंक डिफॉल्ट करते हैं, जो बैंक डिफॉल्ट करते हैं उनको आरबीआई स्टेप इन करता है। उसमें क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आप दो चीज और तैयार करिएगा, कैश रिजर्व रेशियो एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैश रेशियो क्या है? बैंक अपने कैश का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखता है, और जो कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है, यह एक इंडिकेटर है। किस बात का इंडिकेटर है? एबिलिटी टू बैंक टू सर्वाइव, एबिलिटी बैंक टू सर्वाइव। बैंक के सर्वाइव करने की एबिलिटी का यह एक इंडिकेटर है कि जो बैंक एक ग्रोइंग बिजनेस कंसर्न चल रहा है वह सिग्निफिकेंट लॉसेस में है, नहीं है। एक बैंक कंटिन्यू कर सकता है, एक बैंक क्या होगा, वह कंटिन्यू नहीं कर सकता है काम में। ए बैंक कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क अगर टोटल वैल्यू ऑफ इस एसेट, अगर उसकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्रॉप कर जाए उसकी लायबिलिटी से। एक बैंक अपना ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता है अगर टोटल वैल्यू ऑफ जो एसेट है ड्रॉप्स कर जाए बिलो टोटल लायबिलिटी। तो किसी बैंक को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है, और इसका मतलब क्या है, उसकी जो कैपिटल है वाइप आउट हो रही है अगर उसकी लायबिलिटी से उसके एसेट नीचे हो जाए। तो इसीलिए आरबीआई क्लोजली मॉनिटर करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। सवाल क्या हो गया? आरबीआई बैंक को मॉनिटर क्यों करता है, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्यों करता है? क्योंकि अगर टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्रॉप कर जाएगा पूरी लायबिलिटी से तो बैंक फेल कर जाएगा। इसलिए कैपिटल पोजीशन ऑफ बैंक को अपडेट, जो कैपिटल पोजीशन ऑफ बैंक को है, जो कैपिटल पोजीशन ऑफ बैंक है, इसको आप उसके कैश से कंफ्यूज ना करें, कैश से कंफ्यूज ना करें। मतलब जो कैपिटल पोजीशन है एक बैंक की, वह उसका कैश नहीं होता है जो बैंक रखता है अपने वॉल्ट में। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है यह एक रेशियो होता है बैंक के नेटवर्थ में। बैंक का जो नेटवर्थ होता है, बैंक के नेटवर्थ होता है, यह बैंक के नेटवर्थ की बात करता है। तो जो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो कंपेयर होता है वैल्यूज ऑफ बैंक का नेटवर्थ अगेंस्ट वेरियस एसेट्स। जो बैंक का टोटल नेटवर्थ होता है, तो जो CRAR है एक रेशियो होता है जो कंपेयर करता है वैल्यू ऑफ बैंक कैपिटल अगेंस्ट वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस एसेट्स, और कितने उसके एसेट्स रिस्की हैं इसको कंसीडर में करके डिसाइड किया जाता है। अगर अब इसका इशू क्यों हुआ, देखिए राइट इशू, एक बैंक ने राइट इशू किया है। राइट इशू होता क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को
आप अपॉर्चुनिटी देते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप अपॉर्चुनिटी देते हो कि आप बैंक का शेयर एक फिक्स प्राइस पे परचेस कर सको। तो जो एक धनलक्ष्मी बैंक है, उसने एक राइट शेयर इशू किया है। इससे क्या होता है? इससे कंपनी कैपिटल रेज करता है। इससे बैंक क्या करता है? कैपिटल रेज करता है। तो जब बैंक को फंड की शॉर्टेज हुई तो एडिशनल कैपिटल, अब इस एडिशनल कैपिटल से इससे क्या, जो एडिशनल कैपिटल आएगा इससे क्या होगा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वह बैंक का बढ़ जाएगा और इससे बैंक की हालत बेहतर हो जाएगी और बैंक का जो लोन है वह कंट्रोल हो जाएगा। बस करें? भावना, कोई टॉपिक और है आपका? Sir, topic nahi, but I have a continuing doubt with this aspect only, how RBI and inflation targeting. हाँ, जरूर जरूर, बोलो। So that was because I had read some other editorial in September or in August, which says that RBI alone can't do anything much to control the inflation. There are some Yes. other aspects also which are interlinked. So I did not get much clarity on those topics Yes. also, sir. So if Yes. this can be continued in Yeah. the next class, saying why RBI can only act as a supplement, whereas fiscal policy also, monetary policy also, both should help in containing the inflation. This I did not know. आज ही कर दें या नेक्स्ट टाइम करें? Sir, as it is, जैसे according to your एक शॉर्ट रिव्यू कर देते हैं। देखो क्या है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए एक कॉस्मेटिक्स काम करता है। कॉस्मेटिक है कि आप, आरबीआई के पास सिर्फ एक काम है कि वह रेपो रेट पे काम करे। बियॉन्ड रेपो रेट पास क्या है? क्या यह रेपो रेट अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है? नहीं। अब आप जाइए, इन्फ्लेशन का कारण क्या है? फूड, गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्शन, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, हंगर, न्यूट्रिशन। देयर इज लॉट इश्यूज अटैच्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है क्या? वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं या घट गए हैं? अगर फूड आइटम का दाम बढ़ गया है तो उसका कारण क्या है? या तो हमने खेती ठीक से नहीं की है, या मौसम ने ठीक से काम नहीं किया है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ गए हैं, या तो विदेश से हम ऑयल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या ओपेक कंट्रीज ने ऑयल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। हाउ आरबीआई कैन मॉनिटर दिस? इट कैन बी मॉनिटर्ड ओनली बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, द मॉनिटरी पॉलिसी विल नॉट वर्क। To control inflation, the economic policy will work. Monetary policy can temporarily do some measures, but in long-term measure can be done by the only economic policy. You create the employment, you create more production, you do a policy where more services may be used, more export may be used, less import. There are so many issues with import export policy ठीक हो, economic policy ठीक हो, आपकी प्रोडक्शन ठीक हो, उसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हैज ए वेरी, अगर ये सवाल आता है कि आपके इन्फ्लेशन को रोकने में मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करेगी, नो, ओनली इकोनॉमिक पॉलिसी विल हेल्प। मॉनेटरी पॉलिसी हैज, आरबीआई एक्ट 1934 हैज गिवन ए लिमिटेड मैंडेट टू कि आपको एक इन्फ्लेशन बैंड दिया गया है। वह इन्फ्लेशन बैंड है, आपको 3 काम करने हैं। उस 3 काम में आगे बस सिर्फ एक काम है, रेपो रेट को कम करना, रेपो रेट को ज्यादा करना। अगर मान लीजिए सूखा पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ड्रॉट हो जाए, हाउ चेंजिंग द रेपो रेट विल हेल्प? वी नीड सप्लाई चेन। Therefore, your doubt is perfectly right कि जो आरबीआई की पॉलिसी है वह टेम्परली आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, बट your inflation will be governed only by your economic policy. Now if you are answering this question, you jump on the headline inflation, core inflation.
You say 299 items are in the basket. Most of the items are produced by the country. If countries fail to produce the sufficiently, supply chains are disruptive, then how RBI will help? I think this answer will close the chapter. मैं अपना एक सवाल कोट करता हूं कि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, उस साल भारत में सूखा पड़ा था, बड़ा भारत में सूखा क्यों पड़ा? तो हमने बोला कि एल निनो इफेक्ट हो गया। उन्होंने पूछा कि एल निनो इफेक्ट जो है वो तो प्रशांत महासागर भारत का, हमने कहा मानसून एक विश्वव्यापी प्रक्रिया, इसी में स्टॉप कर दिया। He has not allowed me to speak fully. He understood कि I have the concept. I understand. I wanted to speak, but he said, no, I understand. The moment you are hitting the right chord, आपको नंबर मिल गया, फिर उसके जिस आदमी ने सवाल पूछा आपको मार्क्स दे दिया है। तो इसलिए क्या है कि कॉन्सेप्चुअल, आई डोंट बिलीव इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन जो मॉक टेस्ट होते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द एस्पायरेंट इज नीडेड, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर आप आ जाओ, आप एक मॉक टेस्ट लें, तो आप जो जानते हो उसी पे कुछ हमने थोड़ा सा पोछा लगा दिया और कुछ नहीं किया ना, जैसे ब्रश दैट। वी नीड टू इंप्रूव यू। अगर आपको 150, 60 से 215, 20 पे लाना है, तो वी नीड टू इंप्रूव योर नॉलेज, योर ओरेशन, योर एक्सप्रेशन, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर हैंड मूवमेंट। लेकिन सबके पीछे नॉलेज सबसे बड़ी चीज। अगर आपको नॉलेज है तो आपको आपका सब चीज कमजोर पड़ जाता है। आई थिंक 1.5 घंटा बहुत ज्यादा है। विल कंटिन्यू, बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्या भावना, हम लोग इसको 1 से 2 कर देंगे, हफ्ते में 1 से 2 कर देंगे। लेट्स वेट सम मोर टाइम, क्योंकि अगर पूरे हफ्ते को आप देखें तो एक क्लास हो नहीं पाता है। Yes, इफ यू sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक क्लास नहीं हो पाता है। तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, टेक केयर। Thank you, sir.